السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام تر احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا سوال یہ ہے کہ کیا ابلیس توبہ کرے گا یا پھر کیا ابلیس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ تو حضرات محترم جواب سنیں۔ ہاں، اگر حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے۔ روایت میں ہے کہ ایک دن ابلیس حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگا، حضور میں بہت بڑا گنہگار ہوں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کلیم بنایا ہے، میں چاہتا ہوں کہ خدا کی بارگاہ میں توبہ کر لوں، آپ میرے لیے خدا کی بارگاہ میں سفارش کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالی میری توبہ قبول فرما لے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو حق تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی، اے موسیٰ، ابلیس کی توبہ تمہاری سفارش سے قبول کروں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ ابلیس حضرت آدم کی قبر کو سجدہ کرے۔ اگر ابلیس ایسا کرتا ہے تو میں اس کے توبہ کو قبول کر لوں گا، لیکن ابلیس کے کانوں تک جب یہ بات پہنچی تو اس بات کو سن کر کہنے لگا کہ جب میں آدم کے زندگی میں سجدہ نہ کیا تو آدم کے مرنے کے بعد کیا کروں۔ دوسری روایت میں یہ ہے کہ ابلیس 1,00,000 سال تک دوزخ میں جلنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ سے نکالے گا اور میدان قیامت میں حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے کھڑا کرے گا اور اس سے کہا جائے گا کہ حضرت آدم کو سجدہ کر لے۔ اس سے کہا جائے گا کہ حضرت آدم کو سجدہ کر لے، تیری خطا معاف ہے۔ تب بھی وہ سجدہ سے انکار کرے گا، پھر اللہ تبارک و تعالی اس کو ہمیشہ کے لیے دوزخ میں ڈال دے گا۔ حوالہ تفسیر عزیزی، سورہ بقرہ صفحہ نمبر 158 اور روح البیان جلد اول صفحہ نمبر 72۔ حضرات محترم، تو آپ نے ابھی سنا کہ ابلیس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے، اس کے توبہ کو قبول کیا جا سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے، لیکن وہ ایسا نہیں کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی اس کو 1,000 سال تک دوزخ میں رکھنے کے بعد پھر اسے یہ مہلت دے گا، لیکن پھر بھی وہ اس سے انکار کرے گا تو ہمیشہ کے لیے پھر اسے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ تو حضرات محترم، ہم جو ہیں اس بات کو جانتے ہیں کہ ابلیس انسان کا کھلا دشمن ہے، وہ ہمیں ہمیشہ وہ اپنے کوششوں سے بار بار طرح کی پریشانیوں میں یا دین سے ہٹانے کے لیے ہم پہ بہت ساری چالیں چلتا رہتا ہے، اور وہ ہمیں یہ چاہتا ہے کہ مومن کو بھٹکائیں، نماز سے روکے، روزے سے روکے، قرآن کی تلاوت کرنے سے روکے، مسجد جانے سے روکے۔ یہ تمام تر کام وہ کرتا رہتا ہے، طرح کی ہمیں پریشانیوں میں ڈالتا رہتا ہے۔ کبھی پیسے کی لالچ دے کر کے وہ ہمارے ساتھ یہ کام کرنا چاہتا ہے۔ اگر ہم تاجر ہیں
बिजनेस मैन है तो कभी नमाज के वक्त में कस्टमर को भेज करके वो हमारे साथ ये करना चाहता है। लेकिन आप यकीन जाने कि रिस्क का मालिक अल्लाह है, रिस्क का मालिक अल्लाह है। वो जब चाहे हमें जहां से चाहे हमें हलाल रिस्क वो मुहैया कराता है। तो हमें भी चाहिए कि हम अपने रब की अताअत करें, रब की फर्मा बरदारी करें, अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए रास्ते पे चले। हज़रात मोहतरम, आज हमें इस बात पे गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है कि हम अपने आमाल में कहाँ तक कामयाब हैं। जब तक कि हम अपने आमाल का मुहासबा कुरान और हदीस के रोशनी में नहीं करते हैं, तब तक हम परेशान नज़र आते हैं। जब हम अपने आमाल के मुहासबे को जब कुरान और हदीस के रोशनी में अइम्मा इकराम के बताए हुए रास्ते पे जब चल करके हम जब गुजारते हैं ना, हमारी ज़िंदगी खुशहाल हमें नज़र आती है। और इसी में हमारे लिए कामयाबी भी है, कामरानी भी है, दोनों जहां की नेमतें हम पा सकते हैं। लेकिन आप चाहेंगे कि कुरान और हदीस से हट करके अपनी ज़िंदगी गुजारे, तो मैं फिर कहता हूं कि हो सकता है कि दुनिया में आप कामयाब हो जाएं, आखिरत की ज़िंदगी के बारे में पता नहीं है। इसलिए कि अगर हम कुरान और हदीस के रोशनी से हट करके अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं, तो एक बात को आप यकीन जाने कि फिर हम ना हलाल की तमीज़ कर पाते हैं, ना हराम की तमीज़ कर पाते हैं। तो अगर आप हराम के ये कमाई से जब अपने बच्चों या अपनी परवरिश करेंगे, तो फिर आप याद रखें कि आपके लिए बुरा अंजाम है, दर्दनाक आपके लिए अजाब है। हज़रात मोहतरम, आप इस सब मौके पे हमेशा जो है सुनते रहते हैं कि अगर हम हरामकारी करें तो हमारा अंजाम क्या हो सकता है या किस हद तक हम परेशान हो सकते हैं। तो फिर मैं यही कहूँगा कि आप अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए रास्ते को अपनाए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ भी आप कामयाब नजर आएंगे, वहाँ भी आप कामयाब नजर आएंगे। हमारी खुशनसीबी है कि रब तबारक व तआला ने हमें एक तो अशरफुल मखलूकात बनाया, दूसरा ये कि हमें उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पैदा फरमाया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने 63 साला जिंदगी पे हमें ये बता दिया कि हमें ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, नमाज हमें कैसे पढ़नी है, रोज़ा हमें कैसे रखना है, हज हमें कैसे करना है, ज़कात हमें कैसे देनी है, हमें अपने पड़ोसियों का ख्याल कैसे करना है, और हमें अपने पड़ोसियों के बारे में किन किन लम्हात पे गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। मैं फिर कहता हूँ कि आप शरीयत मुतहरा की पाबंदी करें। अल्लाह तबारक व तआला हमेशा 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 जो है आपके लिए मेहरबान है, और आप शयातीन के मकर व फरेब से महफूज रहें, बचने की कोशिश करें। अपने बच्चों को, अपने इलाके के बच्चों को नशा की तरफ जाने से रोके। इसके लिए हो सके तो आप मुहिम चलाए कि ताकि जो आज नौजवान बच्चे जो हालत नशा में बर्बाद हो रहे हैं, उनके घर बार को उनको सुधारा जा सके, बेहतर जिंदगी दी जा सके। तो इसके लिए ज़रूरत है कि हम इलाके के जो ज़ी-शऊर लोग हैं, बावकार लोग हैं, उनको लेकर उनके साथ बैठे बातचीत करें और इसके बारे में गौर व फिक्र करें, और इस नशा को हम अपने इलाके से ख़त्म करने की कोशिश करें। रब तबारक व तआला हमें अहले सुन्नत वल जमात पे कायम व दायम रखे, हमें हमेशा रज़ा मसलक रज़ा का पाबंद बनाए, उस पे चलने की तौफीक व रफ़ीक अता फरमाए। हज़रात मोहतरम, अगर हम ना सोचेंगे कौन सोचेगा। फिर मैं कहता हूँ कि अपने इलाकों को हर तरह की बुराइयों से बचाने के लिए जो कदम उठाना पड़े, जिससे मिलना पड़े आप मिलें, अगर और अपने इलाके को तमाम बुराइयों को जड़ से ख़त्म करने की कोशिश करें।